So children, I welcome you all once again in today's lecture, and I'm going to continue further with the topic, the working of the institutions. In the previous lecture, children, I told you about the various branches of the government, in which I told you about the legislative, the executive, and the judiciary. Okay, and the various functioning of these three organs of the government also I discussed about it. You can see through a diagram over here, the legislative branch, it's in the parliament. The executive branch, it's a secretariat building with the ministries, and the judicial branch is the Supreme Court and the High Court. After that, children, I told you why do we need a parliament? Because we need a parliament for making laws of the country, for controlling over the government, for monetary matters also, and it is the highest forum of the discussion. This is an important topic which you are supposed to learn it. Why do we need parliament? These are the four major points. After that, children, I told you about the two houses of the parliament, in which I told you about the Lok Sabha and the Raj Sabha. In this, the composition of the Lok Sabha and the Raj Sabha is going to come, and the second question on this topic will be why Lok Sabha is more powerful than the Raj Sabha. After that, children, I told about the various functions of the parliament, that ordinary bills are passed in both the houses, but Lok Sabha is the numerical majority. That is why when there is a deadlock between the two houses, the majority of the Lok Sabha prevails over there, and on many matters Lok Sabha enjoys more power than the Raj Sabha, because Raj Sabha can delay the bill only for 14 days. After that, it's supposed to send it back. After that, I told you that Lok Sabha also controls the government, that is Council of Ministers, and through no confidence motion they control the councils of minister, and the Raj Sabha does not have this power. After that, I told you about the political and the permanent executive. Once again, I would like to, because many children are confused over it. Political activities are those people, those who are elected by the people of the country. नेता जो लोग होते हैं, MPs, MLAs होते हैं, ये पोलिटिकल एक्टिविटी पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है, जो MPs, MLAs हमारी सरकार चलाते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, वो पोलिटिकल एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव होते हैं. एंड परमानेंट एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव आर दोज मेंबर्स which are nominated, and these are selected through the civil service examination. That is why these are also called as the civil servants. And ये permanent executive political executive के अंडर में पढ़ते हैं. Permanent executive, they have more expertise on the field, they are more skills in the field in comparison to the political executive. ओके, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर फॉर द लॉन्ग टर्म. ओके, नाउ दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is going to come for your exam, so go through it, children. After that, I told you about the prime minister. In prime minister, I told you how the prime minister of the country is elected, and secondly, what are the functions of the prime minister. It's given over here, children. Go through it. An important question is here, that what are the various functions of the parliament. So these are the 8 important points. You are supposed to learn it. After that, I told you about the cabinet ministers and the council of ministers. There are 3 parts in it. पहला council of ministers, उसके अंदर cabinet ministers बनते हैं. उसके बाद independent ministers of states होते हैं. उसके बाद ministers of states होते हैं. Ministers of states जो है cabinet ministers को help करते हैं. These are the 3 categories of the council of ministers. After that, I told you, children, about the election of the president of India. President of India, how the president of India is elected in our country. ठीक है, he is not directly elected by the people of the country, but he is indirectly elected by the MPs and MLAs which are elected by us. ये MPs, MLAs जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. जिसको भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट मिलता है, दैट पर्सन विंस द इलेक्शन, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट. आफ्टर दैट, आई टोल्ड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Powers of the president, there are 8 important points. Please go through it. I have discussed about it. He is the head of the state. Nominal powers हैं. He supervise overall function of the political institution. Political activities जितनी भी होती गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ उसके नाम पे होती हैं. लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के होते हैं, उन्हीं के नाम पे इशू होते हैं. मेजर अपॉइंटमेंट्स जो होती है देश की, वो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स जो भी साइन होते हैं वेरियस कंट्रीज़ के साथ, वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया. बट देयर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास लिमिटेशंस क्या हैं कि प्रेसिडेंट ओनली वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सेकेंडली, president can ask council of ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again,
he is bound to act according to it. थर्ड, बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट, ये लिमिटेशंस जानते हो क्या होता है कि ये क्या काम जो है लिमिटेड है उनके लिए. सो जितना भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में वो लॉ हो जाता है जब प्रेसिडेंट उसको साइन करता है. लेकिन अगर प्रेसिडेंट ही वांट्स टू डिले फॉर सम टाइम, अगर प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए डिले करता है, उसको बिल को वापस भेजता है पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए, तो वो उसको फिर से पास करना पड़ता है, बस उसको साइन करके भेजना होता है. ये डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स आपको मैंने बता दिए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, एंड प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है. ही ऑल्सो अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो. इलेक्शन कमीशन एम्बेसडर्स और अदर कंट्रीज होता है. ठीक है, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है. ठीक है, उसके बाद अब आता है मेरा जुडिशरी. टुडेज टॉपिक, मेन टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेल यू, एक्सप्लेन यू, इज अबाउट द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री. Children, already in 8th standard you have learned about the judiciary of our country. In that I told you that जुडिशरी जो है 3 लेवल्स पे होती है. पहला होता है हमारे सबसे पहले टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट पे होता है हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में होता है. सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली जो सेंटर में एक ही होता है. फिर हमारा स्टेट कोर्ट दैट इज़ हाई कोर्ट आता है. उसके बाद हमारे नीचे लोकल कोर्ट्स होते हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोलते हैं. और पंचायत में पंचायत अपने आप डिसीजन लेती है. सो जितने भी कोर्ट्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स इन आवर कंट्री, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री. ये इट इज़ इंडिपेंडेंट, ऑलरेडी यू नो. Once the Chief Justice of India is appointed by the President of the country, no one can interfere in it, like Election Commission also. So it is an independent organization and it's a very powerful institution and it is very important for a democracy. Judiciary, because देखो 3 मैंने आपको ऑर्गन बताया था, legislative, executive and judiciary. Judiciary is also very important institution in our country. इंडियन जुडिशरी जो है इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, ये आपको बता चुकी हूँ. हाई कोर्ट इज फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट द लोकल लेवल्स आर ऑल्सो देयर. सो 3 आर देयर. याद करो 8th स्टैंडर्ड का जुडिशरी हम लोग ने पढ़ाया था आपको, उसमें 3 लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स हमने पढ़ाए थे. सो जुडिशरी इन इंडिया इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो अब जुडिशरी के पावर्स क्या हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जुडिशरी इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड ऑल्सो. India has integrated judiciary. I would like to tell you what do you mean by integrated judiciary. Integrated judiciary, children, it means that देखो ये integrated judiciary है. Integrated judiciary मतलब क्या होता है कि Supreme Court controls the judicial administration in the country. Supreme Court controls the judicial administration in the country. कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी हाई कोर्ट्स आते हैं, लोकल कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उनकी सारी जुरिस्डिक्शन को वो कंट्रोल करता है. पहली बात क्या है, इट सेटल द डिस्प्यूट. सेटल द डिस्प्यूट किसमें, बिटवीन द सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 और 2 स्टेट से ज़्यादा लड़ाई होती है. आपको मालूम है पंजाब एंड हरियाणा को लेके अभी हमारा PSLV शायद यमुना लिंक के ऊपर लड़ाई चल रही है. ठीक है, पानी के ऊपर. तो ये भी यही डिस्कस करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गया हुआ है. इसी तरह से कर्नाटका एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर कावेरी रिवर के ऊपर पानी के ऊपर झगड़ा चल रहा है. कभी कभी सिटीजन्स को के बीच में लड़ाई होती है तो भी सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है. सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में भी होती है तो भी सेटल करता है. जो देखो मंडल कमीशन मैंने बताया था आपको, सिटीजन्स कौन थे, इंदिरा साहनी एंड ऑल द ग्रुप एंड ऑल, जो कि मंडल कमीशन के अगेंस्ट उन्हें किया था, तो वो भी उसने किया था. बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, कभी सेंटर और स्टेट के बीच में भी लड़ाई होती है, आपने देखा है कभी कभी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सेटल करता है. ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि फ्री फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. It is free from legislature and judiciary means judges do not act on the direction of the government here. ठीक है, आपको पहले बता दिया इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो जजेस यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम नहीं करते, गवर्नमेंट इनको अपने कंट्रोल में नहीं करती है, ना ही किसी पार्टी के जो पावर में पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पावर के कहने पे काम करते हैं. जजेस इंडिपेंडेंट है, जजेस आर टोटली इंडिपेंडेंट. ना तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट के कहने पे काम करेंगे, ना ही किसी पार्टी के कहने पे यहाँ पे काम करते हैं. सेकेंडली, इसीलिए जो है हम कहते हैं कि दैट इज़ वाई जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं उनके पास कोर्ट्स हैं एंड दीज कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. नंबर 3 पॉइंट क्या है, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री.
What do you mean by interpret the constitution of the country? कि Supreme Court or High Court, they have the power to interpret the constitution of the country. If they want to make any changes in the laws of the country, in the constitution of the country, only they have the power to do that. Is it clear? Supreme Court का final वर्डिक्शन होता है और कोई नहीं कर सकता है. फोर्थ इज जुडिशियल रिव्यू. बेटा इसको याद करना, ये 1 मार्क्स का आएगा. व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? हु कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, और इंटीग्रेटेड जुडिस्डिक्शन क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आता है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. नाउ जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, अगर कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी लॉ पास होता है या कोई भी एग्जीक्यूटिव का एक्शन होता है, मिनिस्टर्स कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो बेटा, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसा लॉ जो बनाया गया है, सरकार ने बनाया है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है वो उसके खिलाफ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है, फिर से मैं समझा रही हूँ. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर हमारा लेजिस्लेचर, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो स्टेट लेवल पे, अगर ये कोई भी लॉ बनाते हैं और अगर वो लॉ जो है या कोई भी एक्शन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं दिया है, उसके खिलाफ बनाते हैं, तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड कर सकता है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है डिटरमिन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है लेजिस्लेशन के ऊपर, या एग्जीक्यूटिव जो कंट्री का होता है, दैट इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट एंड ऑल, उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर वैलिडिटी नहीं है तो वो उसको डिटरमिन ऑब्जर्व कर सकता है. ठीक है, अगर उनके पास अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, इज इट क्लियर, अगर आप उनके पास कोई चैलेंज आता है और उनको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉ बना है, आप अब इसका एक कोई एग्जाम्पल ढूंढिएगा, इसका कोई एग्जाम्पल ढूंढिएगा अभी ऐसा कुछ हुआ था, तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर के सामने ये चैलेंज आता है कि अगर लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के अगर अगेंस्ट कोई लॉ बनाता है, तो उसके पास पूरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए, और वो उसको चेक कर सकता है. इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ गो थ्रू इट. एंड अगर कोर्ट को लगता है कि लॉ और ऑर्डर एग्जीक्यूटिव को अगर कोर्ट को लगता है कि लॉ या कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव का है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो उसके अगेंस्ट बिहेव कर रहा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो वो उस लॉ ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है, फिर से बता रही हूँ, अगर कोर्ट को ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको डिसोबे कर रहा है, तो वो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है फिफ्थ पावर क्या है? फिफ्थ पावर है हमारी फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन भी है. ये फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन क्या है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जो हमारे राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लिव है, ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इन फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो गार्डियन है, इसकी रक्षा कौन करेगा? इसके अगर खिलाफ कोई काम होता है तो कौन देखेगा? तो ये पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसके पास, कोर्ट के पास ही होती है. नाउ ये जो पावर है एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी, इससे क्या होता है कि ये एक हमारे एक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन की तरह से. दैट इज़ वाई जुडिशरी के पास सबसे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होती है अमंग द पीपल. अब आपने देखा है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स हमारी सरकार हमसे छीन लेती है, या सपोज करो कोई भी व्यक्ति हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारी छीनता है, तो जुडिशरी के पास पूरी पावर होती है कि वो आप कोर्ट में सीधे जाके, जिसको बोलते हैं मानहानि का दावा, ठीक है, आप कोर्ट में जाके जो है लोगों को जुडिशरी के ऊपर ही कॉन्फिडेंस होता है. देखो लोगों को कहते हुए सुना है कि हमें अपने न्याय के ऊपर पूरा विश्वास है. न्याय के ऊपर विश्वास माने क्या होता है कि जुडिशरी जो न्याय करेगी, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनी गई है, वो न्याय बिल्कुल उचित करेगी. तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जुडिशरी के ऊपर है. अब जुडिशरी जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. अगर लगता है कि हमारी राइट छीन ली गई है, तो हम
कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं PIL 8th में। PIL क्या होता है, ये PIL बाद में निकाला गया था। इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग थे, जो उनके पास पैसा नहीं होता है, जो कोर्ट में नहीं जा सकते अपने केस को करने के लिए, तो कोर्ट ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए PIL निकाला गया है। इसमें जो है PIL में वो अगर टेलीग्राम करके भी अपनी प्रॉब्लम को अगर सुप्रीम कोर्ट को भेजता है, या लेटर लिख के भी भेजता है, ठीक है, या किसी PIL के थ्रू कैसे भी वो जाता है, तो वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी वो देखता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाके ये काम PIL दायर कर सकता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कंसिडर करता है, उसको देखता है। उसके बाद गवर्नमेंट पावर मिसयूज ना हो, इसलिए उसको भी चेक करता है। कोर्ट जो है कब देखते हो बीच बीच में इंटरवीन भी करती है कि कहीं गवर्नमेंट जो अपनी पावर को मिसयूज करना कर ले डिसीजन लेने में, ठीक है। इसलिए वो गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल्स की पावर्स को चेक करता है कि वो कोई गलत काम अगर कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। बहुत सारे केसेस हैं आजकल, डिफरेंट केसेस जो आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई गलत काम करता है तो उसको वो पनिश भी करता है। माल प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से कोई काम कर रहा है। दैट इज़ वाई जुडिशरी के पास हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अमंग द पीपल, ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। इसमें क्या होता है कि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के होते हैं, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। और कैसे करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना बन जाता है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो जजेस को अपॉइंट करवाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर के हेल्प से सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। सो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं आपके, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होता है दैट इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड एक बार पर्सन जो है अपॉइंट हो गया जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उसको रिमूव करना इम्पॉसिबल है अब उसकी पोजीशन से, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज करो अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम अगर सपोज करो वो गलत काम कर रहा है तो कैसे रिमूव होगा, तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब ये तो है आपका एक क्वेश्चन, कैसे हाउ आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये देखो ये इम्पीचमेंट का आता है। इम्पीचमेंट मीन इसको कैसे निकाल सकते हो, तो अगर जज को रिमूव करना है वो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। इम्पीचमेंट मोशन जो है आपका पार्लियामेंट में पास होता है, और कैसे पास होता है, अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली, अलग अलग, मीन्स लोकसभा अलग 2/3 मेंबर्स उसके अगेंस्ट जो है वोट कर देते हैं और राज्यसभा अलग कर देता है, तो ये जो है जज रिमूव हो जाता है वहाँ से। यहाँ पे लिखा इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं, इट हैज़ हैपेंड, दिस इज़ रॉन्ग चिल्ड्रन। 2 बार हुआ है, एक तो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट का जज रिमूव किया गया, एक राजस्थान हाई कोर्ट का जज रिमूव किया गया है इम्पीचमेंट के थ्रू। दिस इज़ ये अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपका यही है कि 2 जजेस हैव बीन इम्पीच्ड ओवर हियर। ये तो ऑलरेडी हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया पढ़ा चुके हैं हम आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको मालूम है, सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट हमारी कंट्री का। इसमें अब वेरियस लेवल ऑफ जुडिशरी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होते हैं, और ये हायरार्की फॉर्म करते हैं लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, इन विच दे सिट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे टॉप पे होता है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका टॉप पे, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो 8th में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आता है, जो कि हर स्टेट के अंदर अपना हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट्स होता है, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस आप देखते हो आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। ये डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठते हैं। उसके बाद सेकंड मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं जो कि सेकंड क्लास के होते हैं, एंड सिविल जज भी होते हैं जो जूनियर डिविजन्स में होते हैं, जो बॉटम पे आते हैं, ठीक है। ये आपके सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, ओके। अब कोर्ट जो है दोनों केस सुनता है, क्रिमिनल केस भी सुनता है, सिविल केस भी सुनता है। पेपर उठाओ, पेपर में आपको देखने को मिलेगा सिविल केस एंड क्रिमिनल केस भी सुनता है, इंक्लूडिंग जिसमें कि इंडिविजुअल के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाए, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, गवर्नमेंट से हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये भी सुनता है। तो ये सिविल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केसेस में आपका जैसे डेकॉइटी आ गया, मर्डर आ गया, ये क्रिमिनल केस में होते हैं, जो कि हम क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। सिविल केसेस में जैसे आपकी
छोटी मोटी लड़ाई, टैक्स के ऊपर लड़ाई हो गई, लैंड के ऊपर लड़ाई हो गई, आपस में नेबर्स में लड़ाई हो गई, गांवों में गाय भैंसों के ऊपर लड़ाई हो जाती है, तो ये सब जाके हम सिविल कोर्ट्स में सुनते हैं जो सिविल से कंसर्न है। मर्डर एंड ऑल ये सब केस हमारा क्रिमिनल में आता है। सो इंडियन जुडिशरी आपको पता चल गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलरेडी ये क्लियर हो गया है। सो दिस मच इनफ फॉर टुडे। आज मैंने पूरी जुडिशरी डिस्कस की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, उसको रीड करके उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के तब रीड करना, तो आपको ईजी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। ओके चिल्ड्रन, सो गुड बाय एंड एंजॉय योर डे।